Welcome to the YouTube channel of Nirav's Maths Tutorial. In the last lecture, we saw the first exercise of the topic Mathematical Logic, in which हम लोगों ने देखा कि how to say whether a given sentence is statement or not. If it is a statement, then how to say whether the truth value is T or F. So आज second video में हम लोग देखेंगे second exercise of the topic Mathematical Logic. So here I am writing the name of the topic, that is Mathematical Logic. Exercise 2. Now second exercise में first question है express the following statements in symbolic form. अभी सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट अपने को लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में मालूम होना चाहिए. सो देर आर 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स आर देयर इन दिस चैप्टर, बट ये एक्सरसाइज में खाली 2 ही लॉजिकल कनेक्टिव यूज होता है. तो पहला लॉजिकल कनेक्टिव है एंड. लॉजिकल कनेक्टिव मीन्स कनेक्टिव मतलब जो स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं. सो एंड से हम लोग स्टेटमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं और सेकेंड और से हम लोग स्टेटमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ कोई स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसमें एंड यूज नहीं होता, उसमें बट यूज होता है, या तो वाइल यूज होता है, अदरवाइज कॉमा यूज होता है, या तो दो यूज होता है, या तो ऑल्दो यूज होता है. ये सब का मतलब एंड ही होता है. और एंड इज कॉल्ड कंजंक्शन और इज कॉल्ड डिसजंक्शन. Symbolically, end is represented by this symbol or is represented by this symbol. Okay, so here I am writing just the symbolically how to represent end, which is represented by this or is represented by this. Okay, so the first question is mango is a fruit but potato is a vegetable. So question is mango is a fruit but potato is a vegetable. So this is my question. So here there are 2 statements. Mango is a fruit, potato is a vegetable. So here I'll write P. Mango is a fruit. Then Q. Potato is a vegetable. Remember one thing, statements are represented by or denoted by only P, Q, R or else any other alphabets, but the alphabets must be in lowercase. Don't write capital P, don't write capital Q, correct? Now we have to represent this statement in symbolic form. तो ये 2 स्टेटमेंट दिया है, बीच में लॉजिकल कनेक्टिव है बट. मैंने आगे बताया बट इज नथिंग बट एंड, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P, but means end को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Q, करेक्ट? So this is the answer of your first statement. Second statement is either we play football or we go for cycling. So मैं इधर P लिखूंगा, we play football. Now don't write either we play football, करेक्ट? मतलब P and Q भी कंप्लीट स्टेटमेंट होना चाहिए. अगर मैं इधर आइदर लिखूंगा तो उसमें और भी होना चाहिए, बट उसमें हम लोग और नहीं लिख सकते. सो P इज वी प्ले फुटबॉल, Q इज वी गो फॉर साइकिलिंग, करेक्ट? सो उसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा. नाउ क्वेश्चन में है आइदर वी प्ले फुटबॉल और वी गो फॉर साइकिलिंग. सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P और इज डिनोटेड बाय V, that is disjunction Q, correct? Now the third one is milk is white or grass is green. Very simple. P, milk is white. Q, grass is green. So इसका symbolic form होगा P और Q. The fourth one is in spite of physical disability, Rahul stood first in the class. तो the question is in spite of having physical disability, तो मेरा P होगा in spite of having physical disability, करेक्ट? अभी Q में लिखूंगा राहुल
stood first in the class. So symbolic form होगा इसका, symbolic form. Now question is, in spite of having physical disability, comma is nothing but and, so P and Q, correct? And the fifth one is, now question number 5th, here I don't have space, I'll first rub the board. Fifth one is, Jagdish stays at home while Shrijit and Shalmali go for a movie, correct? So if we observe, Jagdish stays at home, that is our first statement. Jagdish stays at home, then while is again I saying, and मैंने पहले भी बोला कि while होता है and, अभी ये जो and है ना वो ये and नहीं है. अगर बाई चांस कोई ये and को ये and लेता है तो फिर इसमें 3 हो जाएंगे स्टेटमेंट. ये एक, श्रीजित 2 और शालमली गो फॉर अ मूवी, ये रॉन्ग है क्योंकि श्रीजित अकेला स्टेटमेंट, श्रीजित का कोई मतलब ही नहीं होता, करेक्ट? सो क्यों आएगा, श्रीजित एंड शालमली गो फॉर अ मूवी, करेक्ट? इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा जगदीश stays at home P, while is nothing but and, श्रीजित and शालमली go for a movie, that is Q. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P and Q. सो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हो गया एक्सरसाइज 2 का. सेकेंड क्वेश्चन में है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू. सो उसमें फर्स्ट है, √3 इज अ रैशनल नंबर and 3 plus I is a complex number. 3 plus I is a complex number, correct? तो पहले तो इसका ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए नाउ हम लोग को इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो √3 इज अ रैशनल नंबर, दैट इज P. √3 इज अ रैशनल नंबर एंड मतलब कनेक्टिव है. सेकेंड Q, 3 plus I is a complex number. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P and Q. ये तो हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म. बट अभी अपने को ये जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट स्टेटमेंट. कंपोजिट मतलब 2 या 2 से ज्यादा सिंगल एटॉमिक स्टेटमेंट को ज्वाइन करके जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं कंपोजिट स्टेटमेंट. तो कंपोजिट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए अपने को रूल मालूम होना चाहिए. अभी इधर एंड है, करेक्ट? तो एंड का रूल होता है कि अगर दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट ट्रू होता है ना तो ही कंपोजिट स्टेटमेंट ट्रू होता है. और का फॉर्मूला है, अगर दोनों इंडिविजुअल फॉल्स होता है ना तो ही और फॉल्स माना जाता है, करेक्ट? तो इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन मिला, मतलब T एंड F आया तो F आएगा, F एंड F आया तो F आएगा, F एंड T आया तो भी F आएगा. अभी इधर T और T आया तो T और F आया तो भी T, F और T आया तो भी T, करेक्ट? मतलब ये 2 रूल्स अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा. सो हियर इधर है P, इधर है Q, इधर मैं लिखूंगा P एंड Q. अभी चेक करना, √3 इज अ रैशनल नंबर. √3 रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है? सो रैशनल नंबर मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको, पहले तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन है कि P/Q फॉर्म में लिखा जाता है कि नहीं. या तो रैशनल मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल और एनी रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड रैशनल. नाउ √3 अगर हम लोग देखने जाए √3 का, तो √3 का वैल्यू जो आएगा उसका डेसिमल फॉर्म में कुछ भी रिकरिंग भी नहीं है और द सेम पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी नहीं है. मतलब √3 इरैशनल नंबर है. तो इसका ट्रूथ वैल्यू होगा F. 3 plus I कॉम्प्लेक्स नंबर 2
अभी एंड एफ एंड टी, मैंने बोला एंड में अगर दोनों ट्रू हुआ तो ही ट्रू है, तो इधर एफ एंड टी एफ आएगा। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एफ, करेक्ट। तो ऐसे हम लोग कॉम्पोजिट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, जुपिटर इज अ प्लैनेट एंड मार्स इज अ स्टार। तो हम लोग पी लेंगे, जुपिटर इज अ प्लैनेट, क्यू मार्स इज अ स्टार। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा जुपिटर इज अ प्लैनेट पी, बीच में दिया गया है एंड इज कंजंक्शन क्यू। अभी इसका हम लोग ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इज पी क्यू, पी एंड क्यू। जुपिटर इज अ प्लैनेट, एब्सोल्युटली ट्रू। मार्स इज अ स्टार, रॉन्ग। एंड में टी एंड एफ होता है, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ given statement is F। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2 + 3 is not equal to 5, 2 + 3 is not equal to 5 and 2 into 3 is less than 5। सो पहले मैं P लिखूंगा 2 + 3 is not equal to 5, Q लिखूंगा 2 into 3 is less than 5, बीच में एंड है तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P and Q। अभी हम लोग ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं उसका। सो P Q, P and Q। Now 2 + 3 is not equal to 5, 2 + 3 is actually equal to 5, but here it is given that not equal to 5, therefore this is wrong। So F, then 2 into 3 is less than 5, 2 into 3 is 6, 6 is less than 5, which is wrong। So again F, so F and F ही होता है, therefore truth value of given statement is F। फोर्थ है 2 into 3, 2 into 0 equal to 2 and 2 + 0 equal to 2। वेरी सिंपल, ये हो गया P, ये हो गया Q, P Q, बीच में एंड दिया है, मतलब ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। 2 into 0 is equal to 2 F, T के बीच में एंड, तो आएगा F, therefore truth value is F। In the exam don't write like this। Fifth one, 9 is a perfect square but 11 is a prime number। 9 is a perfect square but 11 is a prime number। तो 9 is a perfect square, ये जो है वो P है, एंड है मतलब सॉरी बट है मतलब एंड, 11 is a prime number Q। So 9 is a perfect square हो जाएगा ट्रू, and 11 is a prime number, again true, yes, true and true true होता है, therefore the truth value of the given statement is T। and the last fifth statement is Moscow is in Russia or London is in France। So Moscow is in Russia, that is P, और है मतलब disjunction, London is in France Q। You have to represent what is P, what is Q, then symbolic form P or Q, then table बना के Moscow is in Russia, yes, the capital of Russia is Moscow, और London is in France, London is in France, that is wrong, so F।
नाउ और डिसजंक्शन में अगर एक भी टी हुआ तो टी आता है, बिकॉज दोनों एफ हुआ तो ही एफ आता है, तो ये टी. सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट बॉक्स भी है तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हो. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में द सेम टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक विद द थर्ड एक्सरसाइज. थैंक यू.